Good afternoon, all of you, respected teachers and my dear students. So, as Sam has said that I am from Thyrocare. So, firstly, I have changed the topic that I will not speak on health awareness. I want to discuss something about traditional aspects versus modernity. Right? So, I want to know that who are amongst the crowd who are not using Facebook, Instagram or WhatsApp. Anyone here is not using all social networking sites? Anyone? Everyone is using it? So I guess everyone is updated and modernized. So all are thinking that I will be giving a speech on not to use social networking site or use mobile networking site. No. This is a very outdated topic and I don't want to discuss on the social networking sites. Exactly. So, firstly, thank you so much. You have gathered here at a very short time. And secondly, feel free to ask me anything and I want active participation of all. So, I want to know that according to you, what is Indian tradition or modernity? You are 21st century students. May I know what is modernity or Indian tradition? Anyone want to answer this question? No one? So, Indian tradition, or you can say tradition, refers to our culture, beliefs and cultural practices which are passed from one generation to the next. And modernity is the new way of doing something, a fresh new model. And Indian tradition is a blend of traditional values and modern spirit. Someone has heard about old age tradition? किसी को पता है old age tradition क्या होता है? Old age tradition वो tradition होता है जो पहले से चलता है बट अब वो harmful effects की वजह से अब बैन हो चुका है या वो डिक्लाइन हो चुका है. तो कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है जो ओल्ड एज हार्मफुल है, हमारी जो ट्रेडिशन है हार्मफुल है हमारे लिए इस 21st सेंचुरी में, जो पहले था और अब नहीं है या बहुत डिक्लाइन हो चुका है? वो एग्जाम्पल दे सकता है? दे सकता है कोई एग्जाम्पल? सो रीमैरिजिंग ऑफ अ विडो, रीमैरिजिंग ऑफ अ डाइवोर्सी, गर्ल चाइल्ड बर्थ इज इंक्रीजिंग एंड मोर. दो मैंने एग्जाम्पल दिए. और childhood marriage. Yeah, exactly, childhood marriage. And more examples? Dowry system. Dowry system, exactly. So, अब मुझे active participation चाहिए अभी. So, you, what is your good name? That red turban. Yes, Shikha. Who is your favorite actor or actress? Okay, thank you. Good choice. And next one? Next girl sitting behind to Shikha. Who is your favorite actor? Okay, Aishwarya. Okay. So, and I want to let you know from boys, who is your favorite actress? कोई भी खड़े होके बोल सकता है. किसी की कोई भी favorite actress या actor नहीं है इस टाइम में? और it keeps on changing. कोई नहीं बताएगा. मैं एक healthy discussion के लिए आई नहीं हूँ. मैं यहाँ पे कोई हाईली एजुकेटेड टीचर नहीं हूँ, जस्ट एक हेल्दी डिस्कशन है. राइट? दैट कॉर्नर बॉय, राइट? या हु इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? शाहिद कपूर. ओके. सो यहाँ पे वरुण धवन किसका फेवरेट एक्टर है? सो आई एम आस्किंग हु इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस. नो वन इज आंसरिंग माय क्वेश्चन. सो रिसेंट मूवी देखी बद्रीनाथ की दुल्हनिया? सबने देखी? कोई मुझे एक पर्सन जिसने देखी है बद्रीनाथ की दुल्हनिया उसका रिव्यू नरेट कर सकता है इस मूवी का? स्टैंड अप एंड नरेट अ रिव्यू. जस्ट व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट फिल्म? सबको स्टोरी तो समझ में आई होगी ना? सो जिसने भी हैंड रेस किया था आप मुझे बताएंगे व्हाट वाज द रिव्यू ऑफ दैट मूवी? सबने मूवी देखी? इट्स अ लव स्टोरी. बद्रीनाथ की दुल्हनिया इज अ लव स्टोरी. Speak loudly if anyone want to answer it. Badrinath ki Dulhaniya is a love story or not? Yes, it is a love story, but it is not like previous
Humpty Sharma ki Dalenia, right? It is our story, but it has also a powerful message. वो powerful message किसी ने note किया? Yes, ma'am. What is that powerful message? Yes, yeah, exactly. And more, and there are something more in that movie. Exactly. मेरा यही टॉपिक है. एक गर्ल के लिए मेरा ये टॉपिक नहीं है, एक ट्रेडिशन के लिए. बेसिकली उसमें डाउरी सिस्टम को बहुत मेंशन किया था. किया था? सब यहाँ पे डाउरी सिस्टम के सपोर्ट पे, फेवर पे है? अगेंस्ट. दैट्स गुड. अगेंस्ट में है, राइट? सो डाउरी सिस्टम, द मेन मोटिव बिहाइंड दैट फिल्म, दैट ओल्ड ट्रेडिशन शैल नॉट एग्जिस्ट इन 21st सेंचुरी, राइट? लड़कियों को शादी के बाद भी काम करवाना चाहिए. और एग्जाम्पल एक मैं देती हूँ, दिल्ली रेप केस. दिल्ली रेप केस हुआ तो सबने क्या किया था वहाँ पे? क्या नहीं? इट्स अ सीरियस मैटर. इट्स अ सीरियस मैटर. दिल्ली रेप केस में आपने घर पे क्या किया? न्यूज देखी और क्या किया? मन ही मन उन क्रिमिनल्स को अब्यूज किया. एंड जो दिल्ली में थे उन्होंने क्या किया? कैंडल मार्च की और कुछ किया. और न्यूज में आपने देखा होगा कोर्ट का डिसीजन क्या था उन क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग. सबने देखी न्यूज. डिसीजन पता चला क्या था उन क्रिमिनल्स का? वो रिलीज क्यों हुए थे क्रिमिनल्स? आफ्टर डूइंग अ रेप अटेम्प्टेड, तब भी वो रिलीज हुए थे. Exactly, they were minors, but they were also rapists also. Minorities के अंडर एज के बेसिस पे छोड़ा. बट अगर वही कैंडल मार्च वाले लोग डंडा उठा के उनके हाथ पैर तोड़ते, क्या वो पुलिस वाले इतने सारे क्राउड को रोक सकते थे? रोक सकते थे? तो जो आज भी वो जो सड़कों पे वो फ्रीली घूम रहे हैं, और क्या पता वो आगे जाके कितने रेप्स करें. अगर उसी टाइम वही कैंडल मार्च वाली पब्लिक, कितनी पब्लिक होगी अराउंड लोग? कितनी होगी? हजारों में, लाखों में? अगर लाखों लोग एक तरफ मिल जाते हैं, उनके हाथ पैर काट देते तो क्या होता? दिल्ली पुलिस या इंडियन लॉ कुछ कर सकती थी आपका? मैम, इंडियन हिस्ट्री का वो लास्ट रेप होता. सॉरी, इंडियन हिस्ट्री में वो लास्ट रेप होता, उसके बाद रेप नहीं होता. हुआ है. सॉरी, बट हुआ है. वो एक 10 साल की बच्ची का रेप हुआ है दिल्ली बाय दोज क्रिमिनल्स ओनली. ये न्यूज ज्यादा आउट इसलिए नहीं हुई थी बिकॉज वो लड़की छोटी थी. शेखर प्राइड का नाम सुना है सबने? शेखर प्राइड स्कूल, उनकी न्यूज सुनी थी लास्ट ईयर नवंबर. जो वहां का ड्राइवर और वॉचमैन ऑफ दैट स्कूल was harassed a girl, and that girl was just 4 years old. नहीं सुना ना किसी ने? बिकॉज ये सारी न्यूज दबा दी जाती थी. जो इतना बड़ा केस हुआ दिल्ली रेप केस, और उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन लॉ ने उन लोगों को छोड़ दिया. उनके सामने भी सच था, हमारे सामने भी सच था. सफर किसने किया? उस लड़की ने किया, उसकी फैमिली ने किया. मैं यहाँ पॉलिटिक्स का ज्यादा नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर इशू हो सकता है. जो सोनिया गांधी ने किया सिंगापुर में जाके, सबको पता है क्या किया? शी वॉज डाइड इन इंडिया ओनली. वो इंडिया में ही मर चुकी थी हॉस्पिटल में, बट उसको सिंगापुर इसलिए ले जाया गया क्योंकि वो चाहते थे कि उनके मेंशन किया जाए कि हम एक लड़की को बचाने के लिए गए. बट उन क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया. अगर उनके हाथ पैर काट दिए जाते, क्या और कोई लड़का XYZ कोई भी लड़का सोच सकता था रेप करने के बारे में आगे? कितने सारे इंसिडेंट्स बच सकते थे आगे रेप होने से? बहुत सारे. और कुछ तो हमारे सामने आते ही नहीं है. 2 केस मैंने आपके सामने लिए जो हमारी न्यूज में आए नहीं है, क्योंकि रेप केस, मर्डर्स इतना यूजुअल हो चुका है इंडिया में कि हम उसको ओवरलुक कितना करते हैं. ये ओल्ड एज ट्रेडिशन ही तो है. सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी क्या करेगी, ये क्या करेगा, ये क्या कहेगा, या हम पुलिस में अरेस्ट भी हो सकते हैं. बट अगर एक साथ मिल जाएंगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती और इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती.
कोई फॉरेन गया है यहाँ पे अब्रॉड घूमने या कभी सेटल हुआ कभी? कोई गया है अब्रॉड कहीं पे भी? कोई भी नहीं गया यहाँ पे? पता है अब्रॉड के बारे में, फॉरेन के बारे में, वहाँ के लॉज के बारे में? वहाँ पे अगर कोई रॉबरी करता था तो उसका क्या कंक्लूजन होता था पुलिस में? सॉरी मैम, कुछ कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में हाथ काटने का वो है। एग्जैक्टली, हाथ काट दिया सिर्फ एक चोरी पे। और वहाँ पे चोरी, मर्डर्स, रेप्स क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ के लॉज और ये सब कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर पुलिस में हो या गवर्नमेंट एजेंसी में हो या डिफेंस में हो तभी आप ये सब कर सकते हैं। एक इंडियन ट्रेडिशन को चेंज करना है जो हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। आप भी गर्ल्स हैं, आप भी बॉयज हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ किसी गर्ल को या कुछ किसी को नहीं। मे बी बरेली में भी कुछ भी हो सकता है या बरेली का लड़का भी कुछ भी कर सकता है। एक नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल जेन्युइन थिंग। जब एक जो फ्रीडम मिलती है तब उसको यूज नहीं करते फ्रीडम को किसी अच्छे काम के लिए, हम बुरे काम के लिए यूज करते हैं। सती सिस्टम कोई बता सकते हैं सती सिस्टम क्या होता है? सती सिस्टम किसी को पता है क्या होता है? किसी को पता है सती सिस्टम? व्हाट इज सती सिस्टम? यस मैम, हस्बैंड की डेथ के बाद में वाइफ को भी उसी के साथ जला देते थे। एग्जैक्टली, बट अगर स्टैंड सो अगर हस्बैंड की डेथ हो, सॉरी, अगर वाइफ की डेथ होगी तो हस्बैंड को भी जला देंगे उसके साथ? क्यों? क्योंकि सबको सेम मिलनी चाहिए ना, सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। एग्जैक्टली, जब जलाया जाता है या विडोज, हस्बैंड की डेथ होती है तो विडोज कैन नॉट वेयर कलर्ड क्लोथ्स, कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, कैन नॉट डू मेकअप और कैन नॉट डू एनी अदर थिंग, राइट? बट अगर कोई वाइफ की डेथ होगी तो हस्बैंड क्या करते हैं? फ्रीली घूमते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है रिस्ट्रिक्शंस? किसी के, मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, बट इस वाई का आंसर मेरे पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। जो आप प्राउड हो उसी में से मैं ही प्राउड हूँ। आप ये कह रहे होंगे जो मैंने कैंडल मार्च की बात करी, मैंने क्यों नहीं कोई स्टेप उठाया जब मैं इतना सब कुछ यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ। सबने एक फ्रेज सुना है, अगर आप बदलना चाहते हो सोसाइटी को तो एक जने से शुरू करो। बट क्या एक जना पूरी इंटायर सोसाइटी को बदल सकता है? जब तक वो कोई अच्छी पोस्ट पे ना हो। मिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम, एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए ग्रेट लीडर। जब वो चाय बेचता था तब भी उसके दिमाग में यही सब बातें चलती थी कि मैं कैसे करप्शन को खत्म कर सकूं और कैसे सब कुछ कर सकूं। बट वो क्या कर पाया उस स्टेज पे? जब वो पीएम बना तब वो कर पाया क्योंकि उसके पास एक पोस्ट थी। अगर वो किसी को ऑर्डर करेगा तो सब मानेंगे, बट अगर एक गर्ल या एक बॉय कहे कि मुझे ये सब चेंज करना है, मैं ही क्यों ना हो, मैं एक एंटायर सोसाइटी को चेंज कर सकती हूँ, मेरे कोई ऑर्डर मानेगा? आप यहाँ पे सुन रहे कितने लोग मेरा बात को सुनेंगे? एक्शन इसका कोई नहीं लेगा। सुनेंगे सब, एक्शन कोई नहीं लेगा क्योंकि मैं एक ऐसी पोस्ट पे ही नहीं हूँ। अगर मेरी जगह यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी खड़े होते और कहते हैं आपको, एक्शन लेते ना, बिकॉज उनके हाथ में सब कुछ है। यही जो थिंकिंग है, यही जो मेंटालिटी है, हमें चेंज करनी है। Am I right? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर मैं कहीं पे भी जगह गलत हूँ मुझे करेक्ट करिए, ठीक है? अगर जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, हस्बैंड को नहीं जलाते वाइफ की डेथ पे, अब वो बिल्कुल बैन हो चुका है, बट पहले भी था। तो ऐसी चीजें जो अब एग्जिस्ट नहीं हो रही हैं, पहले से कुछ चेंज हुआ है ना, और आप ही लोगों ने चेंज किया ये सब चीजें। रेप होते हैं, मर्डर्स होते हैं, या सोल्जर्स एट द बॉर्डर अपनी जान दे देते हैं, तो क्या करते हैं? फेसबुक पे पोस्ट होता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, व्हाट्सएप पे हम कहेंगे कितने लोगों को भेजो,
तो उनकी कंसोल करेंगे, पर वो होने से रोको तो सही। फेसबुक पे गुस्सा निकालने से क्या फायदा है? फेसबुक पे कमेंट्स आ जाएंगे रेप के या कुछ भी आ जाएंगे, उससे क्या फायदा होगा? वो तो चला गया, या जिसके साथ रेप होना था वो तो हो चुका। सफर वो करेगी, उसकी फैमिली सफर करेगी, या जिसकी डेथ हुई है वो सफर करेगा। मॉलेस्टेशन किसको सफर करना पड़ता है? इंसल्ट है, सब कुछ उसी को सफर करना पड़ेगा जो सफरर है। दिल्ली रेप केस से 2-4 दिन में हल्ला हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? याद भी नहीं है किसी को। याद है जब तक कोई वो बात ना होगी तब तक किसी को याद भी नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ फेसबुक स्टेटस एंड उन सब पे पोस्ट करने से अच्छा अपनी सोसाइटी, अपने इंडिविजुअल के लिए सही करो। जब तक सोसाइटी चेंज नहीं होगी, एक गर्ल तो कम से कम सिक्योर नहीं है। मर्डर बॉयज का भी हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। एक और मूवी देखी होगी, रॉकी हैंडसम, देखी है सबने? बहुत कम लोगों ने देखी है, बट देखी है। क्या करते थे उसमें? ऑर्गन्स निकाल के बेच देते थे पैसों के लिए। अगर यही हमारी इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉ होती तो ये सब होता नहीं होता ना। इतना हमने क्रिमिनल्स को इतनी छूट दी हुई है, चाहे वो इंडिविजुअली क्यों ना हो, इतनी छूट दी हुई है कि वो कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तो ड्रग्स और सब आगे बहुत ज़्यादा यूजुअली होगा। बरेली में बहुत केसेस होते हैं। दिसंबर में सीवीगंज में रेप हुआ था, पता है किसी को? न्यूज़पेपर पढ़ता है कोई? नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर, है स्टूडेंट न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं। ये हमारे बरेली में ही हो रहा है, पर ये इसलिए छुपा देते थे क्योंकि एक गर्ल की बात मानी नहीं जाती इस हद तक। इंडियन लॉ क्या कहते हैं? गर्ल्स को कितना % राइट मिलना चाहिए पता है किसी को? 51% राइट मिलना चाहिए 100% में से, और 49% बॉयज़ को है। बट इसका तो उल्टा ही होता है, 51% बॉयज़ को मिल रहा है, 49% गर्ल्स को मिल रहा है। जब एक गर्ल कह रही है मेरे साथ रेप हुआ है, तो वाई द गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रुथ? सबको पता है रेप उसी के साथ हुए, क्रिमिनल्स हुए तब भी छूट गए। मर्डर हुआ है, सबको पता है मर्डर किसका हुआ है, कैसे हुआ है, तब भी छूट गए, बिकॉज पैसे देके छूट गए। पैसे देके तो छूटे, या माइनॉरिटीज आ गए, या बैकग्राउंड उनका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, या अदर बैकवर्ड क्लासेस है, नहीं ये कर सकते सब कुछ। या अगर वो सिंगल बॉय हुआ फैमिली का तो अर्निंग मेंबर है वो। सुना ही वाला रीजन किसी ने? अगर एक मेल पर्सन ने कुछ क्राइम किया है और उसके अलावा कोई अर्निंग पर्सन नहीं है और उसके पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, तो वो इस बिहाफ पे भी छोड़ा जाता है क्योंकि वो अर्निंग मेंबर है फैमिली का। क्यों हाई गर्ल अर्निंग मेंबर नहीं हो सकती फैमिली की? और आजकल तो गर्ल्स जो पढ़ रही है सब अर्निंग मेंबर ही होंगी, और शादी के बाद जो भी होगी तो क्या देखने को बुलाते हैं? जब देखते हैं लड़की को आजकल क्या पूछते हैं? खाना बनाना आना चाहिए, क्वालिफिकेशन, व्हाट शी विल डू आफ्टर मैरिज, व्हाट वर्क शी विल डू। सबसे ज़्यादा फीमेल टीचर्स हैं मेल टीचर्स से ज़्यादा, है ना? क्यों है? क्योंकि हर घर में हर वर्किंग क्लास लेडी होनी चाहिए, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, है ना? और इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या है? हमने उनको इतना पैसा देके पढ़ाया है तो वो एटलीस्ट हमें रिटर्न तो करे उस पैसे का, है ना? ये मेंटालिटी डोंट टेक इट अदरवाइज। किसी के एक पर्सनल व्यू पे नहीं बोल रही हूँ, एक 80% इंडियन टेंडेंसी यही है। आजकल जो हो गया वो अर्न करेंगी तो अपनी शादी के लिए खुद जोड़ेंगी। उनको हमने इतना पैसा खर्च करके, एजुकेशन कितनी महंगी है? आपके अराउंड 1 ईयर की फीस कितनी जाती होगी अप्रोक्सीमेटली? कितनी? सॉरी 20,000 पर सेमेस्टर पर ईयर? पर ईयर हाउ मेनी इयर्स आर देयर टू बी ग्रेजुएशन? 3 इयर्स। 3 इयर्स की अगर 20,000 की जैसे उन्होंने बताया इंटू करें तो 60,000 हो गई ग्रेजुएशन की फीस। बॉयज के लिए इतना नहीं होता, गर्ल्स के लिए जब होता है, जब हमने इनको इतना पढ़ाया तो कमाई भी तो सही। बॉयज के लिए भी होता है, रिटर्न तो करे एटलीस्ट।
ये मेंटालिटी चेंज करनी है मुझे, राइट? और ज़्यादा बोर हो गए, टॉपिक चेंज करूँ? बहुत हो गया ना ये वाला? यस मैम, आई वर्ड यस मैम। सो डू द राइट थिंग्स बाय द राइट वे। मैं नहीं कह रही हूँ अगर तुमने किसी को कैंडल मार्च में डंडा मार लो तो एक शुरू कर दो, जस्ट एक जुट होके शुरू करो, राइट वे से करो। अगर वही राइट थिंग तुम गलत वे में करेंगे सब, तो वो गलत ही कहलाई जाएगी, चाहे वो सही क्यों ना हो। Just do the right things at the right way and do not follow any other guy, any other person by the sake of anything. गर्ल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये सब करना, बिकॉज गर्ल है, फैमिली बैकग्राउंड है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा आगे जाके। बट अगर वो बॉयज के साथ मिलके इकट्ठे हो जाए, फ्रेंड के साथ सब जाते हैं ना मूवी, KCD, मैकडी, डोमिनोज, बॉयज के साथ ही जाते हैं, ग्रुप होता है ना, होता है कि नहीं होता? बहुत कम होते हैं जो अलग उनका इंडिविजुअल ग्रुप होता है, बट जाते तो सब साथ में हैं। जब हम पार्टी साथ में कर सकते हैं तो सोसाइटी चेंज नहीं कर सकते साथ में। मैं ये नहीं कह रही गर्ल अकेली जा रही है तो एक जो गलत हो रहा है उसको रोके, तो सारे बॉयज गर्ल्स एक साथ मिलकर कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज यू आर अ न्यू जनरेशन और आपके दिमाग में ज़्यादा बातें फीड होती हैं और आपके सामने पिछली जनरेशन भी है और ये जनरेशन भी है। आप घर में हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर पे, किसी के जॉइंट फैमिली में मोस्टली, या अभी अलाइव हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं, राइट? वो जनरेशन आपने देखी, उनकी मेंटालिटी सबको पता है क्या होती है, वो कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं। देन सेकेंड जनरेशन, योर मदर का फादर, पेरेंट्स देखिए, देन योर्स, और किसी की उससे स्मॉल जो ब्रदर और सिस्टर होंगे, यंगर ब्रदर और सिस्टर, वो भी देखी आपने, देखी? यहाँ पे किसी का यंगर ब्रदर और सिस्टर है? Sam, who is this? Yes. How old is he or she? 3 years. Oh, he's in 10th class. 10th class. 16 years old. So at which year are you in? First year. First year. So आपने मोबाइल फोन कब यूज करना शुरू किया था? After 12th. At 12th. And your brother is using mobile phone? No. Exceptional case. But at 10th or 9th, even everyone is using phone. Even I have taken my personal mobile phone at the age of 18. At first year we got graduation. First year. तो अभी छोटे बच्चे भी फोन यूज कर रहे हैं और वही ग्रैंड पेरेंट्स को फोन यूज करना भी नहीं आता। आपके सामने 3 जनरेशन है, इंक्लूडिंग यू 4 जनरेशन है। अगर मैं उन छोटे बच्चे, वो ग्रैंड पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज नहीं हो सकती, हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज नहीं हो सकती, बट आपकी मेंटालिटी चेंज हो सकती है, आपके यंगर ब्रदर और सिस्टर की मेंटालिटी चेंज हो सकती है, बिकॉज यू आर एट द ग्रोइंग स्टेज। जब वो एक्सपीरियंस है, आई नो वो एक्सपीरियंस है, वो जो चीज़ें सिखाते हैं वो आपको अभी भी नहीं मिलेगी सीखने को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगेंस्ट जाके कुछ करो, बट जो सही है वो करो, लड़के या वो सब करके भी समझा के। कहीं मैं यहाँ पे कहूँ घर जाके कोई कि आपको ये नहीं आता और आप वहाँ पे लड़ना शुरू कर दें कि उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा करना चाहिए, बट उनको ऐसी मेंटालिटी चेंज करो या ऐसी उनकी चीज़ें सही करो कि वो हमारी बात को समझें और सोसाइटी चेंज करे बाय गिविंग एग्जांपल्स। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता है आपके पेरेंट्स किस तरह समझते हैं, उनकी वीकनेस, उनके स्ट्रेंथ्स पता है ना, जिद करते हो तो पता है ना कैसे मनाना होता है, मोबाइल फोन टूट जाता है, लैपटॉप टूट जाता है, पता है ना कैसे जिद करके उनसे लेना है, नया पता है कैसे लेते हैं, कोई बताएगा? जिद करके मैं पढ़ूंगा नहीं, या क्या बोलते हैं सब, खाना नहीं खाएंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, खाना नहीं खाएंगे, राइट? बट और इन सब चीज़ों में इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना? मूवी देखने जाते हो, जिद करके जाते हो, कभी कभी छुप के भी जाते हो, क्लासेस भी बंद करते होंगे, पूछ के करते हैं। अच्छा, क्लासेस जो बंद करते हैं पूछ के करते हैं घर में क्लासेस बंद?
बंक करने वाला हूँ। कोई घर में फोन करता है अपने पेरेंट्स को that I will bunk today class, I will not going to college? करता है कोई फोन? नहीं करता। और वही अगर कोई सोसाइटी के लिए चेंज करने की बात होती है, पहले पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है। वो उसने क्यों चाहिए होती है और बंक करने के लिए क्यों नहीं चाहिए होती है? बंक करने से नुकसान आप ही का हो रहा है, सोसाइटी चेंज होने से फायदा आपका हो रहा है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट डू द राइट थिंग्स, और किसी भी तरह की मतलब सेक के लिए गलत काम मत करो, स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। मैं एक रेप केस या मर्डर की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल अगर हम गर्ल्स को भी लें तो गर्ल्स भी बहुत आगे निकल चुकी है क्राइम के बारे में। राइट, ज़्यादा राइट मत कहो, मैं भी गर्ल हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। बट अगर हम कहें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ड्रग्स गर्ल्स भी ले रही है, एल्कोहल भी ड्रग्स ले रही है, स्मोक भी कर रही है, सब कुछ कर रही है एज कम्पेयर टू बॉयज़। मैं रेप तो सिर्फ बॉयज ही कर सकते हैं, वो नहीं करेगा। और जो गर्ल्स होती हैं वो और कोई गलत काम ना करें, मर्डर गर्ल्स भी कर सकती हैं। और सबसे बुरा जो लॉ है डिफेंस में, लड़कियां किसी का भी मर्डर कर सकती है। एग्जैक्टली। बट ये लॉ बहुत अच्छा है कि अपने डिफेंस में गर्ल कुछ भी एक्शन ले सकती है उसके अगेंस्ट, बट कुछ गर्ल उसका डिसएडवांटेज फायदा उठाती हैं। राइट? झूठ बोल देते हैं कि बदतमीजी कर रहा है, झूठ मत बोलो। कर रहा है तो करो, नहीं कर रहा है तो उसको जबरदस्ती मत फंसाओ। एग्जैक्टली। गलत हूँ मैं कहीं पे? गर्ल्स गलत हूँ? जब तक तुम्हें कोई छेड़ नहीं रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, छेड़ नहीं कर रहा है, हरास नहीं कर रहा है, कुछ लोग ऐसे ही फंसा देते हैं। क्या मिल गए फंसाने से? तो वो लड़का इनोसेंट है, कुछ नहीं किया फिर भी फंसा दिया। क्या मिला? कुछ मिलता है किसी को? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल गए। पैसा कितना चलेगा? कितने दिन चलेगा वो पैसा? 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, साल, उसके बाद। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट किसी को गलत क्राइम में मत फंसाओ, और जस्ट डू द राइट थिंग्स एट द राइट वे, डू नॉट डू एट द राइट थिंग्स, राइट? एंड नाइस मीटिंग यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।